ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਬਾਂਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਗਰਗ, ਜਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ, ਵੀਨਾ ਗੋਇਲ, ਜੀਵਨ ਗੋਇਲ, ਨੀਲਮ ਗੋਇਲ, अरविंद गोयल, नीना गर्ग, सतीश गर्ग, प्रेमदीप बांसल, अनु बांसल, ईशमा सिंगला, राजेश सिंगला, वैभव बांसल, आदिति बांसल, संचित बांसल, समरथ बांसल, समायरा बांसल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਖਾ ਪੈਲੇਸ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਲਾਲਾ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 14 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ, ਵੀਨਾ ਗੋਇਲ, ਨੀਲਮ ਗੋਇਲ, ਨੀਨਾ ਗਰਗ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੇਮਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੇਮਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਮਰਥ ਬਾਂਸਲ, समायरा बांसल, नक्श सिंगला नाल महक रही है, जो सब आप जी दे नक्शे कदमां ते चल रहे हैं।
सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। बहुत सुंदर भाव। छोड़कर जग का पसारा दो घड़ी, झपटे सीता राम प्यारे दो घड़ी। एक बार जिस समय यक्ष जी और युधिष्ठिर जी का संवाद होता है, बहुत सारे प्रश्न यक्ष जी ने युधिष्ठिर जी से पूछे। उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न था। यक्ष जी पूछते हैं युधिष्ठिर जी से, किम आश्चर्य, कहते संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, कौन सी बात है जो बहुत हैरान करती है। तो युधिष्ठिर जी जो है वो प्रत्युत्तर में बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते संसार की जानते हैं सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है। एक इंसान अपने पूरे जीवन के अंदर ना जाने कितने लोगों को इस धरती से जाते हुए देखता है, कितनी ही जीव आत्माएं जो अपने जीवन के सफर को संपूर्ण करती हैं और उस ईश्वर के धाम में चली जाती हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात क्या है, एक व्यक्ति कभी जीवन के प्रति उदासीन नहीं होता। उसे कभी नहीं लगता कि ये क्षण ये पल मेरे जीवन में भी आने हैं, एक दिन इस भरे पूरे संसार को छोड़कर मुझे भी जाना होगा। वो कभी नहीं इस बात को याद रखता। वो भूल जाता है तेरे आगाज से साबित तेरा अंजाम भी, सुबह का होना बताता है होगी शाम भी। यदि सूर्य उदय होता है तो सूर्य का अस्त होना भी निश्चित है। यदि हमारा इस धरती पर जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु का क्षण भी तय हो गया। उस ईश्वर ने उसी समय हमें श्वासों की पूंजी दे दी। अब ये तो व्यक्ति के हाथ में है कि वो उस पूंजी का उपयोग कैसे करता है, किस प्रकार वो अपने श्वासों की पूंजी को सहेजता है, कैसे उससे लाभ ले पाता है। एक छोटी सी घटना याद आई। जिस समय महात्मा बुद्ध जी इस धरा पर आए, वो सत्य का प्रचार जगह जगह पर करते थे। उस समय उनका एक शिष्य था, बहुत धनी व्यक्ति था, जिसका नाम था अर्थवसु। वो जो व्यक्ति है धनी बहुत था लेकिन कंजूस बहुत था। कभी भी कोई कार्य होना उसने कभी भी धन को ऐसे व्यय नहीं किया था, खर्च नहीं किया था। बहुत कंजूसी बरतता, एक एक पैसे को सहेज कर रखता, एक एक पैसे को बचाता। लोग बहुत हैरान थे, इतना धनी व्यक्ति है, कभी कोई दान कभी कोई कर कुछ नहीं उसने किया। लेकिन कहते हैं एक समय आया जब वहां पर नालंदा के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण होने वाला था, एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला था। कहते उस समय उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी करोड़ों की संपत्ति जो है वो दान में दे दी। लोग बहुत हैरान हुए। जिस व्यक्ति ने कभी एक पैसा भी दान में ना दिया हो, एक ही पल में उसने अपनी करोड़ों की जो संपत्ति है वो दान कर दी। किसी ने पूछा उस व्यक्ति से, ऐसा क्या हो गया, आपने पूरा जीवन धन सहेजा है, आपने कभी कुछ दान नहीं किया, कभी एक पैसा भी किसी को नहीं दिया, आज ऐसा क्या हो गया कि आपने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दान में दे दी। उस व्यक्ति ने कहा, कहते मैं अपना पूरा जीवन धन को सहेजता रहा मात्र इसीलिए कि कभी कोई ऐसा कार्य हो जो मुझे लगे जिसमें मेरा धन दिया जा सके, मेरे योगदान की जरूरत हो, तो मैं अपना संपूर्ण सर्वस्व उस कार्य के अंदर दे दूंगा। उस ईश्वर ने आज हमें इन श्वासों की धरोहर को देकर इस धरा पर भेजा है। जानते हैं धन तो कभी खो जाए फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन ये श्वासें जिस समय समाप्त हो जाती है ना, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनके लिए तरसते चले गए। सिकंदर जैसे सम्राट भी कहते चले गए कि मेरा संपूर्ण वैभव संपूर्ण संपत्ति ले लो लेकिन मुझे कुछ श्वास उधारे दे दो। कहते जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई ना, मां से बहुत प्रेम था सिकंदर को। उसके मन में एकमात्र इच्छा थी, एक बार अपनी मां से मिल लूं। सभी से कहता है सब कुछ ले लो लेकिन मुझे श्वास दे दो, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। कहते राजन यह संभव नहीं है, हम सब कुछ दे सकते हैं, आपके लिए मर सकते हैं, लेकिन आपको श्वास ही नहीं दे सकते। उस समय सिकंदर कहता है जब मेरा जनाजा निकाला जाए ना, मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर कर देना। इसीलिए संत कहते हैं याद रख सिकंदर के हौसले तो वाले थे, लेकिन जब गया जहां से तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। इसलिए विश्वासों की पूंजी को सहेज कर रखें, समेट कर रखें, ये हमारे संत हमें समझाते हैं। आए ऐसे ही भावों को एक अन्य प्रस्तुति के माध्यम से श्रवण करते हैं। सो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की
की जय, साचे दरबार की जय। जीवना दो दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम। जीवना दो दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे बालपना तो खेल गवाया, बालपना तो खेल गवाया, तरुणी हुआ तब समय गवाया। जीवना दो दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम। झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, आखिर मौत निदान। जीवना दो दिन का मेहमान, कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम।
सत्यता जीवड़ा 2 दिन का मेहमान। लेकिन कैसे हैरानी की बात है, इस सत्य को जानते हुए भी हम अपने जीवन में कितना विचार कर पाते हैं सत्य के ऊपर। कहते इस समय क्या हुआ, जिस समय स्वामी विवेकानंद जी भारत से विदेशों के अंदर भारतीय संस्कृति का प्रचार करने हेतु गए हुए थे, एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ जिसके अंदर स्वामी जी को बोलने के लिए जो विषय दिया गया वो विषय था शून्य। जिस समय स्वामी जी को शून्य के ऊपर बोलने के लिए कहा गया तो सभा के अंदर उपस्थित सभी लोग सोचने लगे, यह विषय पहली बार सुना है, शून्य जीरो के ऊपर स्वामी जी क्या बोलेंगे, आज तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। देखते हैं शून्य के ऊपर स्वामी जी क्या विचार देते हैं। तो जानते हैं उस भरी सभा के अंदर जिस समय स्वामी विवेकानंद जी बोले तो उन्होंने क्या कहा, राम नाम एक अंक बाकी सब शून्य। उन्होंने कहा कि इस संसार के अंदर जब एक जीव आत्मा आती है, एक व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म के पश्चात शैशव काल उसका बचपन व्यतीत हो गया, बड़ा हुआ, युवा अवस्था में प्रवेश करता है, युवा अवस्था चलेगी, बुढ़ापे के अंदर प्रवेश हुआ, एक समय आता है जब अपने संसार के अंदर जो ईश्वर की दी हुई आयु है उसका निर्वाह कर इस संसार से चला जाता है। उसके अपने ही प्रियजन उसे ले जाते हैं शमशान घाट के अंदर, उसका संस्कार कर दिया जाता है। उसका जो तन है वो राख की ढेरी के अंदर परिणत हो जाता है, जो हड्डियां हैं उसकी उसे भी गंगा के जल के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है। बची हुई राख जो है वो भी एक समय आता है हवा के साथ उड़ जाती है, बचा क्या, शून्य ही तो बचा। लेकिन इस शून्य की भी कीमत तब है जब जीवन में प्रभु की भक्ति है, क्योंकि ये बात हमारे महापुरुष हमारे संत कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनानां शरणभंगुरा। उन्होंने कहा मानव तत्व दुर्लभ है। विचारणीय बात है, एक तरफ इस तन को दुर्लभ कहा और दूसरे ही पल कह रहे हैं शरणभंगुर है, पता नहीं है किस समय समाप्त हो जाए। लेकिन विचार कीजिए इस क्षणभंगुर जीवन के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हमारा जीवन किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। क्या जीवन में हमने प्रभु को स्थान दिया, कि प्रभु की भक्ति को स्थान दिया, शायद नहीं। बहुत सुंदर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, द होल वर्ल्ड इज अ यूनाइटेड असाइलम, एवरीबॉडी इज मैन, someone after name, someone after fame, someone after health, someone after wealth, someone after wife, someone after a few after God, and I prefer those who are mad after God। पूरा संसार एक पागल खाना है, हर कोई पागल है, कोई धन के लिए, कोई संपत्ति के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई पौत्र के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई किसी उपाधि के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर के लिए पागल होते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ पागल हैं, क्योंकि जीवन की सार्थकता उस ईश्वर की भक्ति में है, जीवन की सार्थकता उस ईश्वर को जानने में है। वही राम के नाम का एक अंक जब हमारे जीवन में जुड़ता है तो हमारा जीवन सराहनीय हो जाता है, हमारे जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। सत्य है, लेकर कुछ नहीं आए और लेकर कुछ नहीं जाएंगे संसार से, लेकिन साथ जाएगा तो मात्र ईश्वर की भक्ति, वो धन जिस धन को कोई चुरा नहीं सकता, जिस धन को कोई हमसे छीन नहीं सकता, और मात्र ईश्वर की भक्ति का धन है जिसे कमाने के लिए संसार पर नहीं। इसीलिए तो जिस समय किसी भी जीव आत्मा का इस संसार से जाना होता है तो हम जब इकट्ठे होते हैं मिलकर ईश्वर की चर्चा करते हैं। कभी विचार किया क्यों? क्योंकि हमारा ही एक परिवार का सदस्य जो हंसता खेलता हमसे बातें करता चला गया, उस पल के अंदर जब हम बहुत दुख को सहन कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रत्येक इंसान जो हमारे भीतर रहता है हमारा मोह हो जाता है उससे। सत्य तो ये है कि जाता जीवात्मा तो कभी भी नष्ट नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर जिस समय अर्जुन को समझा रहे हैं कहते हैं, नैनम छिन्नत के शस्त्राणि नैनम धति पावता न चैनम कलेदेन क्या पुनः शोषयति मारुता। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता, लेकिन फिर भी हुआ क्या है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय वाणी ग्रहणाति नरो प्राणी तथा श्री राणी विहाय जीता नयनानि संयाति नवाणी देवी।
जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जीव आत्मा एक तन को छोड़कर दूसरे तन के अंदर चली जाती है। लेकिन हम व्यथित क्यों होते हैं, हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा मोह है। हमने इतने वर्ष उसके साथ व्यतीत किए हैं, उस समय में मात्र ईश्वर की भक्ति ही है जो हमें हौसला देती है, जो हमारा संबल बढ़ाती है, जो हमें इन दुख के क्षणों से बाहर निकलने का प्रयास हम जो कर पाते हैं, तो मात्र ईश्वर के साथ जुड़ने पर ही ये संभव हो पाता है। हम घर के अंदर गरुड़ पुराण के पावन पाठ को रखते हैं। एक एक शब्द, एक एक विचार जो है हमें उस ईश्वर की ओर लेकर जाता है, हमारा उस जीव आत्मा के साथ जो मोह है उसे खत्म करता है। इसीलिए ये जो समय है ये विचारने का समय है। जाने वाली प्रत्येक आत्मा हमारे लिए संदेश छोड़कर भी एक दिन ये समय भी हमारे जीवन में आएगा, हमें भी जाना है। लेकिन उस दिन से पहले हम अपने जीवन के लक्ष्य को जान लें, उस ईश्वर की भक्ति में अपने मन को रमा लें। आए ऐसे ही भावों को एक अन्य भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। जीवन है विचार मन रे, जीवन है विचार मन रे, जीवन है समझेगा तेरे मन झूठ को क्यों सच माना है। कल परदेस में आया था तू लौट तुझे घर जाना है, कब समझेगा माँ तेरे मन झूठ को क्यों सच माना है। प्राणी का पंछी खोल उड़ेगा, प्राणी का पंछी खोल उड़ेगा, तन पिंजरे का द्वार। जीवन है विचार मन रे, जीवन है विचार। जिसके पीछे भागी है वो साया हाथ लाएगा, इतराई करनी पे लेकिन अंत समय पछताएगा।
जीवन है विचार दुनिया एक मुसाफिर खाना लगता हर कोई बेगान जिसे बुलावा जाए छोड़ चलते उड़ जाना है दुनिया एक मुसाफिर खाना लगता हर कोई बेगान जिसे बुलावा जाए छोड़ जगत उड़ जाना है प्राण का पंछी खोल उड़ेगा प्राण का पंछी खोल उड़ेगा तन बिजेगा द्वार जीवन है मंदिरे जीवन है प्रभु के बिना नहीं कर पाएगा प्रभु के बिना नहीं कर पाएगा ये भव सागर पार जीवन है जीवन है विचार जीवन है विचार जीवन है विचार बेटिया बूढ़िया जगते छावा लभदिया तुर जावण एक बार ते मावा लभदिया तुर जावण एक बार ते मावा लभदिया मंदा बोल जी बोलन टोक दिया चंगी माड़ी था तो जानो रोक दिया मंदा बोल जी बोलन टोक दिया चंगी माड़ी था तो जानो रोक दिया मुफ्त चेटिया नेक सलाह लब दिया तुर जावण एक बार ते मावा लब दिया तुर जावण एक बार ते मावा लब दिया पुत्र पावो लख जहानो मंदे ने माया खड़ सारी जगतों चंगे ने पुत्र पावे लख जहानो मंदे ने माया खड़ सारे जगतों चंगे ने मुफ्त चेटिया नेक वफावा लब दिया तुर जावण एक बार ते मावा
प्रभु चरणों में यही प्रार्थना है कि उस दिवंगत आत्मा को, उस माँ को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और अगला जीवन उनका इसी प्रकार से एक ऐसे परिवार में हो जो फिर से प्रभु चरणों से जुड़े, भक्ति करें, अपने जीवन को सफल करें। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, इससे पहले कि पंडित जी से निवेदन करूं, एक अंतिम भजन आपके साथ साझा करना चाहेंगे और उसके बाद पंडित जी से आग्रह करूंगी कि पूरे विधि विधान के साथ आज के इस कर्म गुणाम का समापन करें। जग छड़ जाना संसार
ये शरीर महंगा है। और इसकी महंगाई कितनी है, इसका एक एक अंग कितना महंगा है, ये आज के युग में जाना जा सकता है। जो हमारे परमात्मा ने हमें दो दो चीजें दी और एक एक का मूल्य कितना बड़ा है, एक एक अंग कितना महंगा है, बड़ा दुर्लभ। ये शरीर किस लिए है, ये भी हमें विचार करना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में लिखते हैं कि चतुरासेत लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणां न मानुषं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानम् उपलभ्यते। 84 लाख शरीर है और 84 लाख शरीरों में केवल एक मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जो अपना आगे का कुछ कर सकता है। क्या करना है? गरुड़ जी ने भगवान से ये प्रश्न किया कि भगवान नानाविध शरीरस्था हरि जीव अनंतराशय जायन्ते च म्रियन्ते च तेषाम् अंतो न विद्यते। अनेक शरीरों में जीव आता है जाता है जिसका कोई अंत नहीं, और सदा दुखातुरा एवं न सुखी विदते क्वचित्। सदा दुखों में पड़ा रहता, कभी सुखी नहीं है। केन उपायेन मोक्षेश बच्चताम बदले प्रभो। भगवान किस उपाय के द्वारा, किस साधन से ये मनुष्य का शरीर सुखी हो सकता है? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़े साधन मैंने दिया, उपाय स्वयं करना। क्या साधन दिया? भगवान कहते गरुड़ पुराण में कि सोपानभूतं मोक्षस्य मानुषं प्राप्य दुर्लभम्। सोपान रूप, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, सीढ़ी से मंजिल तक जाया जाता है, और अपनी मंजिल को पाने के लिए मैंने ये मनुष्य शरीर रूपी एक सीढ़ी दी, और हमारी मंजिल कौन सी? इसी श्लोक का अर्थ बाबा तुलसी जी ने रामायण में भी दिया। उत्तरकांड में कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और ते ही पाए न कहीं परलोक सवार। ये मनुष्य का शरीर एक साधन है जो मुक्ति रूपी मंजिल तक पहुंचाता है, और इस शरीर को पाकर भी जो सुखी नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं कि यही वह नरक व्याधिस्ते चिकित्सा में करोती है। व्याधि माने रोग, किसी मनुष्य को कोई रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, और उसे किसी अच्छे अस्पताल में, अच्छे शहर के अच्छे अस्पताल में अच्छे किसी डॉक्टर के पास छोड़ दिया जाए, जहाँ दवाइयाँ भी हो, इलाज बढ़िया हो सके, और वो वहाँ ना रहे, और किसी गांव में, देहात में, किसी जंगल में जाकर सोचे कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा, तो क्या हो सकता है? इस श्लोक का अर्थ ये कह रहा है, यही वह नरक व्याधिस्ते चिकित्सा में करोती है। निरोषधम के करिष्यति व्याधिस्ता। फिर रोगी ऐसे जगह जाकर जहाँ दवाइयाँ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, वहां जाकर कैसे अपना इलाज करवाएगा? ये भारत भूमि एक बहुत बढ़िया नगर है, और इसमें 3 बढ़िया अस्पताल, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य,
तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। ये कर्म करने के अधिकारी हैं। ये तीन बढ़िया अस्पताल हैं। ऐसे वर्णों में जन्म मिल जाए मनुष्य का और फिर भी वो दुखी रहे, क्योंकि जीव आत्मा दुखी होने वाली वस्तु नहीं है। ये तो उस परम तत्व का छोटा सा हिस्सा एक तत्व है। इसको हम कहते हैं जीव आत्मा, और परब्रह्म को क्या कहते हैं? परमात्मा। वो परम आत्मा का ही छोटा सा हिस्सा ये जीव आत्मा है। जब ईश्वर का अंश है तो दुखी क्यों है? अज्ञानता की वजह से। अज्ञानता क्यों है? बड़ी सुंदर बात वेद व्यास जी लिखते हैं 16वें अध्याय में, बहुत रहस्यमयी कथा है। कहने लगे कि विवेक सत्संगश्च निर्मल नयनात्वयम् सो अंध, जिसके पास दो आंखें नहीं वो अंधा कहलाता है। और इस मानव शरीर को पाकर जिसके जीवन में एक सत्संग और दूसरा विवेक, ये दो आंखें नहीं है, वो अंधा है। वो तो कुमारक पर, वो तो दुखों में ही पड़ेगा, वो सुखी कैसे हो सकता? ज्ञान के बिना दुखी, और ज्ञान कहाँ मिलेगा? बोले सब शास्त्रों में, सब ग्रंथों में ज्ञान ही तो भरा है, पर ग्रंथ भी तो समझ में आए। एक ग्रंथ को पढ़ते हैं तो कुछ कहता है, और दूसरे को पढ़ते हैं तो उसमें उसके उलट कुछ दूसरा मिल जाता है, फिर मन भ्रमित हो जाता है। इसीलिए यहाँ 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं ग्रंथों में उलझोगे खो जाओगे, क्योंकि ग्रंथों का शब्द कुछ और है, उसका इशारा कहीं और हो, और ये इशारा कोई कोई महान आत्मा समझ पाती है। उस महान आत्मा के बुद्धिमान के शरण में जाकर उसे गुरु धारण करना चाहिए। तो योग्य महापुरुष ही उसका लक्ष्य बता सकता है। एक व्यक्ति एक परिवार में एक मंदिर बनाया, और उसी परिवार के एक समय आया कि किसी ने उस मंदिर को तुड़वाया। तुड़वाया क्यों? बनाया किसने? प्राचीन समय की बात है, पहले एक एक सेठ मंदिर, धर्मशाला एक एक सेठ बनाया करते थे। किसी सेठ ने मंदिर बनाया, और बहुत समय तक मंदिर चलता रहा बड़ी बढ़िया ढंग से। भगवान का सुंदर स्वरूप वहां पर रखा गया, नित्य पूजा चलती रही। सेठ ने मंदिर बनवाया, वो वृद्ध हो गया। विचार किया कि स्थितियां परिस्थितियां बन जाती हैं। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि इस मंदिर को चलाना परिवार के लिए मुश्किल हो जाए। आज मैं समर्थ हूं, शरीर से भी और धन से भी, क्यों ना इस मंदिर के लिए कुछ करें। रात में सोचा, सोचते सोचते महीना 2 महीने बीत गए, क्या करूं? धन किसी को दे दूं, उस समय वो रहेगा कि नहीं रहेगा मालूम नहीं। जब मैं नहीं रहूंगा दूसरा कोई रहेगा, ये कुछ जरूरी नहीं। धन ऐसी जगह रखा जाए कि जब परिस्थिति बने तो वो काम आ सके। कार्तिक का महीना, दिवाली का दिन, दोपहर के समय 1000 सोने की मोहरें उस सेठ ने एक पोटली में लगे। दोपहर के समय अकेला चला। 12 बजे मंदिर के पट बंद हुए और उसने वो पोटली रखी।
पोटली को तो मैंने रख दिया, धन तो रख दिया, लेकिन 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी बीतने के बाद इसकी आवश्यकता मंदिर को पड़ेगी तो निकालेंगे कैसे? कौन जान पाएगा इसको? उस व्यक्ति ने 2 दिन चक्कर लगाया मंदिर के दोपहर के समय, और फिर उसने एक कारीगर को बुलाया और एक पत्थर लिया, पत्थर पर लिखवाया कि मंदिर के पूजा पाठ कार्य को चलता रहने के लिए, मंदिर की जीर्णता को मिटाने के लिए धन की आवश्यकता पड़े तो मंदिर के गुंबद में 1000 असरफियां रखी। भला इतना लिखने पर कोई छोड़ेगा असरफियों को? लिख दिया। कई बार गुंबद को इधर उधर से तोड़कर देखा गया, नहीं। 2 4 7 5 पीढ़ियां बीती, गरीबी आ गई और मंदिर भी जीर्ण हो गया। किसी ने कहा तुम्हारे मंदिर में तुम्हारा पत्थर लगा हुआ है, उसमें सोने की सर्फियां रखी, निकाल लो। बोले अब वो कह रहे गुंबद में रखी है, अब गुंबद तोड़े कैसे? मंदिर टूटे तो सर्फियां निकले। बोले नहीं, रखने वाले ने ऐसे ढंग से रखी होंगी कि गुंबद भी ना टूटे और निकल भी जाए। ढूंढो जरा। ढूंढते ढूंढते मंदिर का गुंबद तोड़ दिया गया, दीवारें तोड़ दी गई, सारा मंदिर ढा दिया, लेकिन असरफियां नहीं। एक महात्मा घूमते फिरते हुए आ गए, वृद्ध महात्मा थे। उन्होंने कहा कि ये मंदिर था, यहाँ किसने तोड़ दिया? बोले उसी परिवार ने तोड़ा जिनके परिवार वालों ने बनाया था, बुजुर्गों ने बनाया था, आने वाली पीढ़ियों ने तोड़ दिया। क्यों? धन की जरूरत थी। धन की आवश्यकता थी तो धन मिला? बोले नहीं मिला। किसने रखा था? बोले पता नहीं, 5-7 पीढ़ी पहले रखा था। तो कौन बताता है रखा था? बोले पत्थर लिखा हुआ। बोले पत्थर दिखाओ। महात्मा को पत्थर दिखाया, महात्मा ने पत्थर पढ़ा। पत्थर पर लिखा है दिवाली के दिन दोपहर में 12 बजे मंदिर के गुंबद में असरफियां रखी गई 1000। महात्मा ने कहा बोले भैया असरफियां तो है। बोले अब तो गुंबद ही नहीं रहा, तो असरफियां कहाँ है? बोले इस मंदिर को उतना ही ऊंचाई में वैसे ही ढंग से दोबारा बना। परिवार वाले बोले अगर मंदिर बनाने की ताकत हमारे में होती तो तोड़ते क्यों? अब मंदिर नहीं बन सकता। महात्मा ने किसी दूसरे शहर से कहा, उसने कहा बाबा इनका मंदिर हमको बनाए। बोले ऐसा करो तुम इनको धन दे दो, ये मंदिर बनाएंगे और जब असरफियां मिलेंगी तुम अपना धन ले लेना। उसने कहा बाबा कहाँ मिलेंगी असरफियां? जहाँ रखी थी वो गुंबद टूट चुका है, अब असरफियां कहाँ? बोले नहीं तुम दो। किसी शेख से धन दिलवाया, मंदिर बनाया, उतना ही ऊंचा वैसा ही मोटा गुंबद बना। तब कहने लगे बाबा अब निकालो असरफियां। बाबा कहने लगे कौन सा महीना है? बोले भादों का। बोले कार्तिक का महीना है। बोले कार्तिक के महीने में पैदा हो जाएंगी? बोले होगी नहीं होगी ये नहीं मालूम, लेकिन असरफियां जरूर मिलेंगी। महीने 2 बीते, कार्तिक का महीना आया। बोले बाबा कार्तिक का महीना आ गया, अब तो निकालो असरफियां। बोले अभी दिवाली नहीं आई। दिवाली के दिन सुबह महात्मा के पास गए। बोले बाबा आज दिवाली है, आज निकालो असरफियां। बोले आज निकलेगी।
लेकिन पत्थर पर लिखा है 12 बजे, तो 12 बजे ही निकले। 11:30 बजे लोग बोले बाबा 11:30 बज गए, 12 बजने में क्या है, निकालो। हाँ बोले ले आओ कुछ खोदने के लिए साधन। क्या खोदे? गुंबद आएंगे? बोले नहीं, जमीन खोदने के लिए कोई साधन लेके आए। कस्सी फावड़ा लेकर के आए। बाबा ने 4 परिक्रमा मंदिर की लगाई। एक बार ऊपर देखें, एक बार नीचे देखें, एक बार ऊपर देखें, एक बार नीचे देखें। जब ठीक 12 बजे और बाबा ने कहा पैर रख करके, बोले यहाँ पर खुदाई कर। कहाँ पर? जहाँ गुंबद की परछाई थी, जहाँ गुंबद की परछाई पड़ी हुई थी, वहां से खुदाई करवाई और 4-5 फुट जगह खोदने पर एक पोटली निकली जिसमें सोने की मोहर है। लोगों ने कहा बाबा मंदिर ढा दिया गया, गुंबद में लिखी गई, मिली जमीन में। बोले गुंबद में ही मिली, लिखने वाले ने गलत नहीं लिखा, सही लिखा हुआ। दिवाली के दिन दोपहर 12 बजे गुंबद में असरकियां रखी गई तो वहीं पर मिलेगी जहाँ रखी गई, उसी समय मिलेगी, क्योंकि 12 बजे से ये दिवाली के दिन वही होगा जहाँ उस दिन था, और उसकी परछाई गुंबद की वहीं पड़ेगी जहाँ पर असरकियां रखी गई। इसलिए बोले ये तुम्हें कैसे मालूम चला? बोले लेख से, लिखने से। पढ़ना तो सब जानते हैं, लेकिन समझना सबके बस की बात नहीं। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि गरुड़, शास्त्रों में ज्ञान तो सब में है, पर उसको समझ कोई कोई पाता है। लक्ष्य कोई महापुरुष प्राप्त कर सकता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने पर ही जय सुख की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। और ये मानव शरीर के लिए विशेषकर ये जानना आवश्यक है। हमारे ग्रंथ और हमारे संत और हमारे महंत सब हमें बार बार एक बात पर जोर देते, पर हम कभी समझे नहीं, हम उनकी बात पर समझ नहीं रखते। बाबा तुलसी जी ने रामायण में लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ नहीं सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं है। पहले हम विवेक को ही नहीं समझ पाते कि विवेक क्या है। जो भीतर का प्रकाश है, भीतर का ज्ञान है, उसकी तरफ झांकेंगे तभी तो पता चलेगा। क्योंकि परमात्मा कहाँ है? बोले हमारे भीतर। सभी कहते हैं परमात्मा भीतर बैठा है, तो भीतर बैठा हुआ कई आत्मा को दुखी नहीं देखता, फिर दुखी क्यों होने देता? परमात्मा का अंश है, आत्मा को उसे दुखी क्यों होने देता है? भगवान कहते हैं मैं करता कुछ नहीं, जो होता है वो मेरे बिना हो नहीं सकता, और करता मैं कुछ नहीं। इस बात को अगर समझ जाओ तो मनुष्य शरीर की सफलता है। भगवान कहते हैं कि मैं करता हूं, इस बात को छोड़ो। जैसे भगवान कहते हैं कि मैं करता कुछ नहीं, ऐसे ही जीव भी यदि कहे कि मैं करता कुछ नहीं, जो हो रहा है भाग्यवश अनायास हो रहा है, तभी इस आवागमन के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। पर मंजिल का पता हो तो मंजिल का पता लगाने के लिए क्या करें? बोले ये शरीर किस लिए मिला है? देह धर्मार्थम। इस शरीर को किस लिए प्राप्त किया है? संसार के साधनों के लिए। संसार के साधन शरीर के लिए है, और शरीर धर्म के लिए है। धर्मो ज्ञानार्थमेव च। धर्म से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य सत्कार माता
श्री कैलाश राणी जी को श्रद्धा के फुल भेंट करना है। हाजरीन, जय श्री राम। जो भी इंसान इस दुनिया च आता है तो एक गल सच्चाई है कि उसके जो जान का समय वो निश्चित होंगे। बहुत ही सूझवान पंडित जी ने सारे जन्म मरण के बारे विस्तार जिक्र किया, सारे जानते भी हैं। और कुछ जड़िया शब्दों के रूप में असीं श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, असी जिंदगी का एक पड़चोल उससे थोड़ा बहुत उस रिश्ते के उन्होंने की कारगुजारी रही असं उसका जिक्र जरूर करते हैं। एंड मैं अक्सर ये गल कहना होंगे कि जो असी किसी श्रद्धांजलि समारोह बैठे होंगे हैं तो जिथे वो श्रद्धांजलि समारोह होंगे उत्थे एक चेतावनी समारोह भी होंगे कि जोड़े लोग उत्थे विराजमान ने असी सारिਆਂ ने इस दिन एक दिन इस रस्ते के विच ही निकलना। माता जी ने बहुत 92 साल की उम्र एंड बड़े अखीर तक तंदुरुस्त रहे। ये भी सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। एंड जो असीं माँ के रिश्ते की गल करिए, असीं सारे जानते कि दुनिया के असीं अगर रिश्तियों के विच पड़चोल करिए तो सब तो महत्वपूर्ण रिश्ता माँ का या बाप का। कितना मर्जी बंदा तकलीफ च होवे, कितना मर्जी दुख च होवे, जो शाम को घरे आके माँ के नाल आके माँ की गोदी माँ के सहारे बैठता है तो मैं सकता हूँ सारे दुख दूर जोड़े है वो खत्म हो जाते हैं। मैं 2-3 मिनट का समा लेना, ज़्यादा समा नहीं लेना। जब मैं जिक्र करा प्रेमदीप बांसल जी का तो असी एक शब्द इतिहास में सुनते हैं, एक सरवण पुत्र होया जिन्हें अपने अंधे माँ बाप को संसार की बहंगी की यात्रा कराई सी। और मैं एक गल जरूर कह सकता है कि असी अगर वो सरवण को मार्गदर्शन मानते हैं जिन्हें माँ बाप की बहुत सेवा की सी, क्योंकि जो आप शब्दों के फुल भेंट कर रहे होंगे हैं, मैं समझदा जे असीं कोई गलत गल करिए वो साडे लिए भी पाप है। जिस असीं रूह नूं शब्दां दे फुल भेंट कर रहे हैं वो भी वो सार्थक नहीं हो सकता। सो मैं समझदा कि ये मेरे शब्द नहीं, ये माता जी ने किसी को कहा को पता लैन सज्जन गया सी कि प्रेमदीप 100 सरवना पुत्रा वर्गा मेरा एक पुत्र है। एंड बड़ी एक फख्र की गल है। एंड मैं भी कदे बहुत ज़्यादा कदे जो गल जैनल होंगी वो की है। मैं इस तो पहला 2 भोगों के बहुत घर सरवण होंगे इसका जिक्र किया सरवण पुत्रा का। एक तो श्री देव सिंह जी उन्होंने फादर साहब की डेथ हुई सी, उन्होंने सेवा बड़ी बाकमाल सी अपने पिता के प्रति। तो दूजे मेरे सामने विराजमान बैठे सरदार दविंदरपाल सिंह, इन्हों के स्वर्गीय पिता जी के भोग से भी मैं इस सरवण पुत्र वाला जोड़ा शब्द प्रयोग किया, क्योंकि जो इन्होंने अपने सेवा भी बहुत की बाप की, अज मदर भी थोड़े ठीक नहीं, उन्होंने सेवा भी बहुत कर रहे। पर जो इन्होंने बेटिया दी शादियां अपनी की तो फादर ने कहा कि मैं दोनों बेटी दी शादियां जड़ियाँ वो दाज तो बगैर करनी है, तो फादर का होर मन जो उन्होंने उच्चा होया फकर का सिर कि बेटे की सोच है। सो इस करके अज सरवण पुत्र बनने की लोड़ है। एक बुद्धिजीवी कितने बैठे गल कर रहे सी, 10-15 लोग बैठे सी, उन्होंने एक शब्द यूज किया कि जो बच्चे चाहन तो माँ बाप को सदा जिंदा रख सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन टिपिकल सी अज बच्चे चाहन तो माँ बाप को जिंदा रख सकते हैं, तो हर बंदा ही कहे चाहता मेरे माँ बाप जिंदा रहन। एक नाम किसी बंदे ने पूछा जी थोड़ा की कहना कि माँ बाप को जिंदा रख सकते हैं। वो कहता जो बाप दुनिया तो चले जाए तब बेटी घर आवे मिलने वास्ते हमें मन के उसके भरा उसको अपने भरा को एहसास होवे कि अज मेरे मेरे पिता के रूप में मैनू अपना भरा दिखता है। वो उही प्यार के मान हासिल करे। असं कहते जो मापे चले गए तो पेके खत्म हो गए, तो फिर समझो भी वो बाप उस घर के जिंदा है।
ਐਂ ਜੇ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਨੰਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਨੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸਾਇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਰਾਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਸਰਬਤ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਅਮਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਐਂਡ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਮੋਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਮੋਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਮੋਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांति